office visit. The equipment necessary for measuring blood pressure includes a stethoscope. The stethoscope should have tubing of sufficient length for the clinician to hear carotid cuff sounds while doing the manometer. The bell side of the stethoscope should be used as it permits better auscultation of carotid cuff sound. A sphygmomanometer consisting of a blood pressure cuff containing a distensible bladder, a rubber bulb, and an adjustable valve, as well as flexible tubing. Finally, a manometer that documents the level of pressure within the cuff. Each part of the sphygmomanometer should be examined on a regular basis. The needle on an aneroid manometer should rest at 0 before and after measuring blood pressure. Aneroid manometers should have scheduled recalibration at least every 6 months. Concerns over the toxicity and environmental impact of mercury have led many institutions to use aneroid manometers exclusively. The steps required for accurate indirect measurement of blood pressure are identical whether used in an aneroid or mercury manometer. Correct positioning of the patient is essential to accurately measure blood pressure. The patient's back and legs should be supported with legs uncrossed and feet resting on a firm surface. The patient's arm should be bared to the shoulder. The arm should be supported at heart level. The manometer should be at the eye level of the healthcare practitioner. A common error in taking blood pressure is the use of an improperly fitting cuff. Selection of an appropriately sized cuff requires assessment of the arm circumference. The midpoint position is determined by measuring the distance between the olecranon and acromion processes. The arm circumference is then measured at the midpoint. Once the arm circumference has been determined, the appropriate size cuff can be selected. Cuffs typically are marked with acceptable sizing indicators to facilitate proper fitting. However, it is more important to use a cuff that is appropriately sized for the arm. To assist in selecting the appropriate size, cuffs should be marked with an index line that runs perpendicular to the length of the cuff and a range line that runs parallel to the length of the cuff. The index line should fall within the range line when the cuff is secured to the upper arm. The cuff should be applied 2 centimeters above the crease of the elbow. It should fit snugly, but still allow 2 finger widths under the cuff. Next, find the brachial artery, which is palpable approximately 4 to 5 centimeters from the medial epicondyle on the anterior surface of the elbow. Place the stethoscope lightly against the skin over the brachial artery. There should be appropriate pressure to ensure good sound transmission. The stethoscope should not be in contact with clothing or with the cuff. Inflating the cuff to some arbitrary level runs the risk of excessive overinflation. To avoid this, determine the measurement of the pulse obliteration pressure. Rapidly inflate the cuff to 80 millimeters of mercury while palpating the radial artery pulse. Continue to inflate in 10 millimeter of mercury increments, taking note of the reading at which the pulse disappears. Then, deflate the cuff at a rate of 2 millimeters of mercury per second, noting when the pulse reappears. Do you want that? Very few people do this, pulse obliteration pressure. So before inflating usually we do it like that, we just inflate to an arbitrary level by ourselves, 150, 160, whatever. Although he said in this fashion, you have a drawback that you may overinflate. But there is one more thing. You may have heard of silent gap. Silent gap is a situation where you are measuring blood pressure, you got sound like 190, tuck, 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 170, and then it disappears. And then again you will hear it like at 140. And then, so if for instance you have gone to an arbitrary level of 150 and you land up in a silent gap, then you will falsely label this patient's blood pressure as 130 by 80, although it was 180 or 190 by 80. So that's why it's obligatory before inflation that you should be assessing pulse, and first try to know the pulse obliteration pressure and go 10 or 20 mmHg beyond that. And
it will really so beneficial for you in heavy OPDs like an ICVD that you can check your patient's blood pressure just systolic, 110 systolic, follow up patient है, ठीक है, कुछ स्टेट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप इसके एक्सपर्ट हो जाते हैं. और ये बहुत ऑब्लिगेटरी ज़रूरी चीज़ है, पल्स ऑब्लिट्रेशन प्रेशर. Once the pulse obliteration pressure is determined, you are ready to measure the blood pressure. Inflate the cuff to a level 20 to 30 millimeters of mercury above the pulse obliteration pressure. Then, deflate the cuff at a rate of approximately 2 millimeters of mercury per second while listening for sounds. As the pressure in the cuff is decreased, blood flow in the brachial artery increases, creating turbulence, which generates Barakov sounds. Phase 1 sounds are clear, repetitive tapping sounds that coincide with the appearance of a palpable radial or brachial pulse. The onset of phase 1 sounds are equivalent to the systolic blood pressure. Phase 2 sounds are audible murmurs in the tapping sound. Phase 3 and 4 sounds are muted changes in the tapping sound. 11:15 पे टी करते हैं और 15 मिनट्स की टी रखेंगे कि जो भी बाकी वो फिर उसके साथ ही ज्वाइन कर लें और 11:30 पे सेकंड सेशन शुरू करें. Phase 5 sound is not really a sound, but rather is the level at which sounds disappear. Phase 5 indicates the diastolic blood pressure. To ensure that diastole has been reached, the cuff pressure should continue to be deflated for an additional 10 millimeters of mercury beyond the fitting Barakov sound. You should measure the blood pressure twice at a minimum, waiting at least 1 minute between readings. The average of the measurements should be recorded. In the following example, the patient's blood pressure is 116/90 millimeters of mercury. You will hear nothing until the first Barakov sound appears at 116 millimeters of mercury. The various phases of the Barakov sounds will be heard until their disappearance at 90 millimeters of mercury. An auscultatory gap is defined as the intermittent disappearance of the initial Barakov sounds after their first appearance. This phenomenon can lead to underestimation of systolic blood pressure. Obtaining the pulse obliteration pressure can be helpful in avoiding incorrect measurement. In the following example, the systolic blood pressure will be heard at 162 millimeters of mercury, followed by an absence of sounds for 4 millimeters of mercury, after which they will reappear. Certain conditions may complicate blood pressure measurement or interpretation. In such settings, decreasing the rate of deflation and averaging several readings may improve accuracy. Observer bias is usually the most common error that occurs in blood pressure measurement. It occurs because practitioners often show digit preference and/or rounding of the terminal digit. When two people use the same correct technique for measuring blood pressure, there should be little inter-observer variation. Measuring blood pressure correctly is required to classify individuals, to stratify their cardiovascular risk, and to monitor the effects of treatment. This video provides the viewer with a standardized methodology that, when followed, will lead to accurate blood pressure measurement. Okay, so just let's summarize. It's very important to know the correct method of measuring blood pressure, and not only knowing, propagating to your nurses, to your medical students, to your residents, to your house officers. And I feel this
after this workshop, you shouldn't be waiting just for CMEs. That you can start with your immediate next one, even if this is your nurse or your immediate junior, talking about all these things. Major flaws in blood pressure, one thing, why it is always round, 130 by 80, 140 by 80. Do we have the blood pressure always divided by 5? So this is big observer bias. Some people stretch the upper reading to bring it to 140, like 143, but they say 140. Some people take the lower reading and bring it to 140. That is a big mistake, because you see 1 mmHg makes your patient either hypertensive or pre-hypertensive or even normal. So why shouldn't be, and that make you casual while taking blood pressure, that I am going to round it. So why should I really work on, is it 144 or 140, or it's 141 or 139, because I am one way or the other going to round it 140 when it's 145 to 135. That's a big problem. Always write and try to get blood pressure at exact number and make your juniors habitual of doing that. I don't want this always multiple. Why is it so that always your blood pressure is multiple of 5? Yeah, that is a big mistake. And that should be conveyed to the junior. I'm just quickly going through the signal. Otherwise, they are simple things. Patients, examiner, apparatus, and something, supported arm, pulse obliteration pressure, which we are not commonly doing, and rounding the BP measurement. That shouldn't be exact reading. जी एक ये इसमें जी बिल्कुल ना बहुत टाइट हो ना बिल्कुल हल्का हो कि बिल्कुल ही पूरा वो हो, और आपका स्टेथ उससे दूर होना चाहिए. कभी कभार उसकी आवाज़ें आपको बड़ा प्रॉब्लम करती हैं और आप उस चक्कर में बजाय इसके कि उसको नीचे आस्तीन, ये बात बिल्कुल ठीक थी, या तो पूरा बेयर हो या आस्तीन उठ नहीं सकती है तो मोड़े नहीं. इस जगह पे आप उसको मोड़ के पूरा एक वो बना लेते हैं, वो गलत है, फिर वो वैसे ही रहेंगे. अक्सर सर्दियों में ख़वातीन स्वेटर्स पहने हुए होते हैं या ओल्ड लोग, तो वो क्या करते हैं जब मोड़ते हैं आप तो यहाँ पे पूरा वो आके जमा हो जाएगा, तो वो उससे बेहतर है कि वो पूरा चढ़ा ही रहे. बेल यूज कर रहे थे. बेल इसलिए यूज करते हैं कि वो फ्रिक्शन नहीं होगी और एडिशनल वॉइसेस नहीं आएंगी डायफ्राम से. डायफ्राम भी यूज कर सकते हैं अगर आप फर्मली अप्लाई कर लेते हैं और वो ड्यूरिंग मेजरमेंट हिले ना. बेल ये कि स्किन को पिक करके, क्योंकि बेल एक्चुअली अगर आप प्रेस करें तो बेल डायफ्राम होती है तो वो स्किन को पकड़ लेती है, तो उस वजह से, लेकिन उसमें ये कि आपको उससे आदत इंसान की उंगली प्रेस करने की उस पर होती है, तो आप डायफ्राम भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट that during taking of blood pressure this diaphragm is not going to move around and create a sound of friction. That's the only reason. इंस्ट्रूमेंट की जो बात हो रही थी, सॉरी, इंस्ट्रूमेंट की जो बात हो रही थी, व्हाट अबाउट डिजिटल? Digital is not exact. It again needs calibration frequent. If you are calibrating and it's exact, then you can use digital. But it needs calibration. सेल्फ कैलिब्रेटिंग है. Calibration इस तरह होती है, उसको कन्वेंशनल से मैच करते रहना पड़ता है. क्योंकि मैंने देखा कि क्योंकि डिजिटल में एक्चुअली सेल्फ मेजरमेंट में ना प्रॉब्लम क्या होती है, आपने देखा कि सिर्फ एपरेटस नहीं है, पोजीशंस भी है ना, आर्म कहाँ रखा हुआ है, किस तरह गफ लगाया हुआ है, तो इट वोंट गिव यू एग्जैक्ट रीडिंग, इट जस्ट गिव यू एन आइडिया एंड यू कैन यूज दैट फॉर एन आइडिया unless and until it's checked by person who knows everything about application, positions and everything. मैं भी थोड़ी सी बात में आखिर में तो ये टोटली यही यूज हो रहा है डिजिटल. देखिए फॉलोअप के लिए हमने कहा है कि वो कर सकते हैं आप. डायनामैप यूज़ होता है ना, आप यूज़ करते हैं, हम भी सीसीयू में जो पेशेंट होता है उसके लिए यही यूज़ करते हैं ना, हर वक्त तो वो नहीं ले सकेंगे, लेकिन डायग्नोसिस के लिए खुद लेना चाहिए. फॉलोअप के लिए कोई इशू नहीं है, 5-10 ऊपर नीचे हो रहा है तो क्या हो गया, क्योंकि उसमें तो आपके पास लिबर्टी है ना कि फॉलोअप के लिए क्या होना चाहिए, ये किसी को आप पेशेंट को उस पर फॉलो कर रहे हैं अपनी ट्रीटमेंट पे. डायग्नोसिस के लिए खुद सेल्फ मेजरमेंट करनी है. What I get from this video is you have to be patient while you have taking the blood pressure. The first thing first, when the blood pressure is being checked in this video, you are taking it 2 mm per second. I mean, they are not. Ideally, it should be like 2 mm per second. But what I suggest in busy clinics and other, it's important the point where you got the sound and disappearing.
तो अब वो हो जाता है कि जाहिर सी बात है, एक बाइक चलाने का जब एक्सपर्ट हो जाता है तो वो मन विलिंग भी कर सकता है। तो वो क्या होता है कि आपको जब साउंड आनी है उस वक्त आपको हर हाल में 1 या 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, जिसका अंदाज़ा आपको पल्स ऑब्लिट्रेशन प्रेशर से कि आपके पास प्रीएम्प्टिव सिस्टोलिक कहाँ आएगा आपको पता चल जाता है पल्स ऑब्लिट्रेशन प्रेशर की वजह से। तो उस वक्त आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में आप 2 mm में जाएँ या 4 जाएँ या 5 जाएँ, उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो सब्जेक्टिव यही है कि वो नए पढ़ने वाले को हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो डायस्टोलिक में भी उसी रिदम में आ जाएगा। आपका अपने वेल्व पे कंट्रोल है तो यू कैन डू दैट। सिस्टोलिक आपने अच्छी तरह देखा, फिर थोड़ा तेज़ी से आया, फिर जैसे ही डायस्टोलिक तो स्लो हो गई, क्योंकि आपको ये 2 लिमिट्स चाहिए, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इज डिसअपीयरेंस ऑफ साउंड। रिमेंबर दैट, डिसअपीयरेंस। साउंड आ रही है वो डायस्टोलिक नहीं है, जहाँ ख़त्म हो गई वो डायस्टोलिक। Because I was concerned about that oscillatory gap. वो आपको पल्स ऑब्लिट्रेशन प्रेशर उस पर ओवरकम करा देगा कि आप पल्स ऑब्लिट्रेशन प्रेशर तो लाजमी है, आप सिस्टोलिक से ऊपर है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। What about 2 readings? 2 रीडिंग्स यूजुअली करनी चाहिए फर्स्ट टाइम में, हमेशा 2 रीडिंग्स, और उनका एवरेज लेना चाहिए, और 2 रीडिंग दोनों आर्म में। फर्स्ट ये तो लाजमी है कि आप दोनों आर्म में लें, लेकिन मेरा अपना ज़्यादा ये इन्होंने फॉलोअप वाली बात की है, जो ज़्यादा वाली होती है उसको डायग्नोसिस के लिए नहीं, लेगा। इसमें एक दूसरी चीज़ है ना, आपने कहा कि पेशेंट जैसे अभी स्मोकिंग करके आया या एप्रीहेंशन आया और आपने इसको, पेशेंट ही फर्स्ट है आपने उसी वक्त रीडिंग ली 160 आ गया ब्लड प्रेशर, 5 मिनट बाद आप ही ने ली रीडिंग 130 आया, तो ये एप्रीहेंशन के दौरान अब आप उसको फिर उसका अकाउंट देंगे ना कि वो 160 वाले को आप वो वाला बीपी तो नहीं लेंगे कि ये वो वाला बीपी था, ये रिएक्शनरी बीपी था। तो वो तो देखें नॉर्मल से हट के जो सिचुएशन बनती जाएंगी तो उसमें उस हिसाब से फैसले करने होंगे। ये हम जो एवरेज की बात कर रहे हैं, ये उसमें जिसमें हमने सारे लवाजमात पूरे किए एक नॉर्मल स्टैंडर्ड ब्लड प्रेशर चेक करने के। नहीं, ट्यूबिंग तो देखें उसमें एक्चुअली ट्यूबिंग जहाँ पे भी लगी उससे इतना मैटर नहीं करता है। ब्लड प्रेशर का कफ में जो इन्फ्लेटेबल पार्ट होता है उसकी रेंज उससे मैच कर रही हो आपके हाथ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। एक्चुअली जो आपका कफ होता है इसमें 2 पार्ट हैं, एक इन्फ्लेटेबल पार्ट, एक नॉन इन्फ्लेटेबल पार्ट। ये पूरा ना इसमें ये इन्फ्लेटेबल पार्ट है जिसको ब्लैडर कहते हैं, ये नॉन इन्फ्लेटेबल पार्ट है। इंपॉर्टेंट जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो इस इन्फ्लेटेबल पार्ट की है जो ब्लैडर है। और ये एक्चुअली क्या होती है, वो जो मिड आर्म सर्कमफ्रेंस लिया गया, अगर इस पर रेंज नहीं भी दी हुई है तो आप समझ रहे हैं कि आपके पेशेंट का आर्म बहुत छोटा या बड़ा है, तो आप उसका मिड सर्कमफ्रेंस देखें, इसकी लेंथ उसके 80% होनी चाहिए और उसकी ब्रेड्थ उसके 40% होनी चाहिए। ये एक आइडियल ब्लैडर है आर्म के लिहाज से। फर्ज किया किसी का मिड आर्म सर्कमफ्रेंस 20 आता है, तो फिर ये 16 की इसकी लेंथ होनी चाहिए और 8 की इसकी विड्थ होनी चाहिए। इसमें रेंज होती है कि काबिल कबूल है 5 ऊपर नीचे, लेकिन बहुत मेजर डिफरेंस आ रहा है तो फिर आप एक्सपेक्ट करें कि आर्म मोटा है तो बीपी फॉल्स हाई आएगा और आर्म बहुत पतला है तो बीपी फॉल्स लो आएगा। इसमें ये क्वेरी मैंने कहीं की थी, तो उन्होंने कहा जो हमने इसको कैलेगराइज किया है, वंस योर कफ इज स्ट्रिक्ट इजीली, तो ये समझ लें कि फिर आपको कैलिब्रेशन के लिए मैं टेप लेनी है आपने क्या करना है, लेकिन जब वंस यू स्टिक दैट इंडिकेट्स, या ओवर जब अब छोटा आर्म होता है और इसको आप अप्लाई करेंगे तो स्टिक नहीं होगा, इन दोनों फेजेज में ज़्यादा आर्म बड़ा हुआ है तो भी आप एक स्टिक नहीं करें। तो ये इन्होंने जो स्टिक की क्या कहते हैं मैजिक लगाया हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, वो स्टिक तो इसको इस ब्लैडर को चिपकाने के लिए है। वंस मैजिक इज टाइटली स्टिक, लेकिन वो एक क्रूड मेथड है कि सर्टली इसके हाफ से ज़्यादा ये निकल रहा है ना, ये इतना हाफ से ज़्यादा निकल रहा है, तो इसका मतलब है आपका आर्म बहुत बड़ा है। और इसी तरह ये इतना निकल रहा है कि इसके हाफ से इधर जा रहा है तो बहुत छोटा, कि इसका आधा जो है वो उस पर होना चाहिए, हाफ से ज़्यादा उस पर चिपकना चाहिए। वो नहीं चिपक रहा है तो ये भी इनडायरेक्ट मेथड है कि उससे आप अंदाज़ा कर सकते। सो दैट कवर्स बीपी मेजरमेंट। I deliberately taken a long time on this BP measurement issue. It's very important because everything is dependent on your measurement. That is, in such kind of patients you can do that, ambulatory blood pressure monitoring, which was in NICE guideline 2011, an obligatory thing. If the clinic blood pressure is 140/90 or higher, offer ambulatory blood pressure monitoring to confirm diagnosis. इस किस्म के माइल्ड हाइपरटेंशन में
आप एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और उसकी मैं डायग्नोसिस बताता हूँ कि क्या तरीका। व्हेन यूजिंग ambulatory blood pressure monitoring, at least 2 measurements per hour are taken during the person's usual waking hours. और ये इसका है होम मेजरमेंट ऑफ ग्रेटर देन 135/85, ये क्योंकि पुरानी गाइडलाइंस के मुताबिक है 125/75 इन डायबिटीज़ और रीनल आर कंसिडर्ड हाइपरटेंसिव। ये अच्छा, अब समझ दें कि जब आप इसको आर्बिट्रेटरी अपने तौर पे मेजर करते हैं किसी के बीपी होम रीडिंग्स वैसे, तो 50% से ज़्यादा रीडिंग, टोटल रीडिंग जितनी आपने ली हैं उसकी 50% से ज़्यादा रीडिंग आपके उस टारगेट से ऊपर ओवरशूट कर रही हैं, तो फिर आप उसको कंसिडर करेंगे। जो अभी हमारी बहस चल रही थी ना, तो एटलीस्ट 50% ऑफ मेजरमेंट शुड बी एट और बिलो गो, अगर आप किसी को नॉर्मल कह रहे हैं, जितनी भी आपने रीडिंग्स ली हैं। अब सेटली अब इसको हम देखें, एक तो गाइडलाइन होती है ना, इन्होंने तो एम्बुलेटरी बीपी के हिसाब से दिया है। अब सेटली उसको जब आप अपने कन्वेंशनल मेथड में अप्लाई कर रहे हैं, किसी को आपने 2 हफ्ते की रीडिंग्स की हैं, अब जितनी भी रीडिंग्स वो लाया है, आइडली कहा करें कि 2-3 रीडिंग अगर पर डे ले रहा है तो मुख्तलिफ टाइमिंग्स की लें, और बिल्कुल सुकून की हालत में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे क्या होता है, बीपी कब लिया जाता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरा बीपी, मुझे घबराहट हो रही है, मेरा बीपी, दिस इज फॉल्स ब्लड प्रेशर। The BP monitoring which you want in your patient should be done at a moment when he is totally or she is totally symptom free with all the preconditions. और अगर किसी ने इस किस्म की हालत में चेक किया तो कहें आधे घंटा रिलैक्स करके, और जो रिलैक्स के बाद बीपी होगा वो लिखा करें, वो वाला ना लिखा करें। That will give you a real picture of your patient's blood pressure. देखें, एक होता है कन्वेंशनल ड्राइविंग, ये फिर जब एपिसोड हो जाते हैं ना, तो क्योंकि ये गाइडलाइंस आर नॉट हदीस और कुरान, दे आर जस्ट अ गाइड, देन यू मेक योर वेज ऑफ हाउ टू अप्लाई इन योर सिचुएशन, बट बहुत कोई मेजर डिविएशन ना हो जाए, बाकी आप उससे अपना रिलैक्स निकाल सकते हैं कोई ना कोई तरीके का, लेकिन कम से कम पता होना चाहिए कि आइडियल क्या है। कोई आदमी 50 या 60 पेशेंट देखता है, सर्टली वो उसका अपना आइडियल वे निकालेगा उसमें कि किस तरह मुझे सही मानों में न्यूली पेशेंट को डायग्नोज करना है, तो वो आप प्रायोरिटाइज कर लेते हैं उसमें सिस्टम में पेशेंट। वो ये बहुत सारे यानी तरीक़ेकार हैं। तो दिस पार्ट कवर्स द डायग्नोसिस इशू, दैट हाउ टू डायग्नोज हाइपरटेंशन, व्हिच इंक्लूड्स proper follow-up measurement in a mild kind of blood pressure, then proper measurement techniques, और फिर उसमें आर्बिट्रेरी है, उसका मैं आपको बताता हूँ कि उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए फॉलोअप का। जी 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 3 मिनट के लिए वो आपको खड़ा करना पड़ता है और फिर देखना होता है कि 20 सिस्टोलिक 10 सिस्टोलिक, वो देखें वो तो कॉम्प्लिकेशन है ड्रग के या सिंपैथेटिक उसमें डायग्नोज करने के लिए, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी वगैरह डायग्नोज करने के लिए, क्योंकि वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हम बहुत ज़्यादा डिविएट हो जाएंगे फिर उससे, हम चूँकि सिर्फ अप्रोच टू हाइपरटेंशन। अच्छा, फिर दूसरी बात इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में देखें 95% एसेंशियल होते हैं, लेकिन जहन उस 5% को भी सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या मेरे मरीज़ में कोई सेकेंडरी के क्लूज़ मिल रहे हैं या नहीं। And in secondary you have persistent and transient as well, ये भी जहन में रखें। इसमें मैं क्विकली गो थ्रू करता हूँ, ये सिर्फ रिकॉल है। स्लीप एपनिया, ड्रग्स, NSAIDs commonly used, steroids that can raise transient blood pressure, chemotherapeutic agents, sometimes आपको पता नहीं होगा बैकग्राउंड में वो किसी वजह से वो भी ले रहा है, बीपी वक्ती तौर पे बढ़ गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, तो ये वो ट्रांजिएंट चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से। फिर रीनल कोऑक्टेशन ऑफ एओर्टा, सारे NSAIDs can cause fluid retention and give you transient increase in blood pressure, every NSAID, even COX-2। फिर एंडोक्राइन के आप सबको पता है कि बहुत सारे कॉजेज हैं, हम गोइंग टू इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें हैं जो ट्रांजिएंट कर सकते हैं। NSAID, COX-2, कोकीन, एम्फेटामिन, सिम्पैथोमिमेटिक, ओरल कॉन्ट्रासाइक्लोस्प्रिन, टैक्लोमिस, एरिथ्रोपोइटिन, आपका किडनी पेशेंट किसी वजह से किसी ने शुरू कर दी है, बताया नहीं है, आपको एकदम से हाई ब्लड प्रेशर के साथ आ जाएगा, अब पूछेंगे तो पता चला कि वो इंजेक्शन अभी लगने शुरू हुए। कॉम्बिनेशन है पोटेशियम के साथ, दैट आल्सो रेज दैट, एवरी NSAID,
because it's a fluid retention. It's not just sodium which is causing increased blood pressure. That's why the non-steroid are being prescribed with the antihypertensive drugs. देखें ये मैं आपको बताता हूँ, ये रिस्क और बेनिफिट देखना होता है भाई, ठीक है ना। कभी पतली गली में एक्सीडेंट तो हो सकता है जाने में, लेकिन आपको काम ही लालू खेत में है, तो क्या वो पतली गली में आप जाएंगे नहीं क्या? किसी को सीवियर आर्थराइटिस है मौजूद, जिसका पेन जाके ही नहीं दे रहा, तो अब उसको पेन में रहने देंगे हाइपरटेंशन की वजह से? फिर एंटी हाइपरटेंसिव बढ़ानी पड़ेगी उसको, वो देने के लिए फिर वो ऐसा बैलेंस रखेंगे कि एनासेड को उस तरह यूज़ करें कि जब वाकई ज़रूरत है। तो रिस्क और बेनिफिट का गेम है ना सारा। Complications, we all know that blood pressure can affect every major organ system, और इसकी हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि किस तरह ये क्रॉनिकली और एक्यूटली इन ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो इसकी भी मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, ये हम जब असेसमेंट पे आएंगे कि हाउ टू गो अबाउट, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिस तरह ये असेस करता है, वो अफेक्ट करता है। Other comorbids, when we say other comorbids, it means these all things, risk factors, जिसमें dyslipidemia, diabetes, age, male gender, smoking, family history, these are the risk factors. It has seen that after 40 years of age, greater than 95% of blood pressure patients have other cardiovascular risk factor, any one of them with them. 95%. कोई इक्का दुक्का बचा हुआ होगा जिसमें एडिशनल चीज़ें ना हो, वरना 95% लोगों में एडिशनल कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होती है। इसलिए असेस करना इन तमाम चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। देन एडिशनल थिंग, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सब्सिक्वेंट फ्यूचर फॉर ड्रग मैनेजमेंट ऑफ दिस पेशेंट, असेसिंग फॉर कंपेलिंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट कि आपके उस पेशेंट में कौन सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे आप किसी एक पर्टिकुलर ड्रग को चूज़ कर सकते हैं टू ट्रीट हाइपरटेंशन, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उस ड्रग के अगेंस्ट हैं इस पेशेंट, उनका असेस करना भी ज़रूरी है। सो इन कंक्लूजन, द सिनेरियो विच वी गेव, यू हैव टू कवर दीज 4 थिंग्स साइमल्टेनियसली. These are the 4 objectives which you have to cover. First, confirm diagnosis. Along with it, assess for etiology, complications, other comorbids. अब इन ये 4 ऑब्जेक्टिव, अब उस सिनेरियो को दोबारा सोचें। 50 years मेल, माइल्ड हेडेक की हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा रेज 150/90 के साथ आपके पास आया। अब इन चारों ऑब्जेक्टिव को जहन में रखते हुए आपका उसके साथ फॉलो अप क्या होगा, क्या प्लान होगा, किस तरह जाएंगे, क्या करेंगे। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखते हैं थोड़ी सी फर्दर रिफाइनमेंट आई उसमें या नहीं आई अप्रोच में। जी डॉक्टर साहब, यानी अब आपने इन चारों ऑब्जेक्टिव को जहन में रखते हुए इसको पूरा प्लान देना है, और अब मुझे बताना है कि मैं इसको इस तारीख को फॉलोअप के लिए बुलाऊंगा, क्या क्या करके। सवाल मुश्किल हो गया भारी हो गया, कोई बात नहीं, ये इंशाल्लाह आप 1-2 मरतबा अपने जूनियर्स को पकड़ पकड़ के पढ़ाएंगे ना, तो आपकी सेकंड नेचर बन जाएगा, और फिर मरीजों पे डायरेक्ट खुद ठक अप्लाई करेंगे। चलें, जब तक आप सोच रहे हैं हम आगे चलते हैं, बाकियों को तो सोचने का टाइम मिल रहा है नहीं, अब हमने ये ऑब्जेक्टिव हमारे माइंड में है। अब देखें, ऑब्जेक्टिव अलग चीज़ होती है और उसकी एप्लीकेशन कि किस तरह इनको अचीव करना है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपका क्या गेम प्लान होगा इस पेशेंट के साथ अल्टीमेटली टू अचीव ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स। Initial workup like blood pressure monitoring, like what I have said, I've got the blood pressure 150/90, right? Now what I'll do, I'll tell the patient, take the blood pressure for next 3 weeks, Okay. right? Agreed. And come after 3 weeks of particular date. All the blood pressure measurements we are taking, it should be at different times, right? With all the counseling, 1, 2, 3, 4, and your lifestyle modification. So, right now, I'm not starting with my medication. I'm giving 3 weeks. 3 weeks time. ठीक है, With parallel investigation.
3 weeks follow up with blood pressure readings, It's a situation that like multiple timings of the day. चलें with the other mandatory investigations, like to know the comorbids like for dyslipidemia, lipid profile. If any opportunities like urea like UCE. Any addition? इन्वेस्टिगेट करेंगे थियोलॉजी के लिए कॉम्प्लिकेशंस के लिए साहब ने कुछ बताई हैं, कुछ आप बताएं। एमबीएस करवाना है। चलें, ये ऐड हुई फास्टिंग ब्लड शुगर और कुछ इसमें एडिशन, यानी ये प्लान। अब आप ये सोचें कि एक हाइपरटेंसिव पेशेंट का प्लान कितने सारे लोग मिलके बना रहे हैं, जो हमें 5 मिनट में देखना है और 5 मिनट में पेशेंट को वापस भेजना है। बिकॉज वी आर नॉट इन, वी ऑल, आई एम नॉट सेइंग यू पीपल, वी ऑल, बिकॉज we are not really making a holistic plans with our patients. This patient is presented in my clinic for hypertension. I am going to assess the clinical complications that are present in this patient in the clinic. They start from above and downwards, which includes retinal Assessment of clinical complications. complications. Good. And advice for ECG, chest X-ray. गुड, एक और ऐड हो गई चीज़। चलें, जब तक यहाँ पहुँचेंगे कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा असेसमेंट। और कुछ It also includes clinical causes or secondary causes hypertension. clinical assessment for secondary causes. Good. Anything else? इसमें जैसे होता है कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन से बात, रूटीन इन्वेस्टिगेशन सारी आ गई, इसके बाद एडवांस जो होती है, वंस यू सी या असेस या नहीं, अभी हम पहली की बात कर रहे हैं, वो तो देखें आगे की बात। अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं है पेशेंट को, तो एम्बुलेटरी 24 आवर आप एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर का भी इन सारी चीजों ऑप्शन, का- बिल्कुल, वेरी गुड, ये है नाइस गाइडलाइन के मुताबिक, बिल्कुल ठीक है। आप एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग, कि आपको रेड क्रिसेंट में इसको शुरू कर देना चाहिए और 3-4 वर्कशॉप करेंगे तो आपका बिजनेस भी बड़ा ठीक ठाक चलेगा। वही कह रहा हूँ कि अफोर्डेबिलिटी ये ज़रूरी है, ज़रूरी है, बिल्कुल। ये पता नहीं लोगों ने अब तक क्यों नहीं इसको यूटिलाइज किया है। ये बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ज़रूरी, नॉट फॉर डायग्नोसिस, फॉर कंट्रोल, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक्चुअली डॉक्टर जैसे रफ साहब ने कहा कि मुख्तलिफ औकात में ब्लड प्रेशर चेक करना, मैं थोड़ा सा गाइड करता हूँ लोगों को कि आप अगर फजर की नमाज़ पढ़ते हो उसके फ़ौरन बाद चेक करें, सही, जोहर की नमाज के बाद करें, सही, वो सिनेरियो आपको 24 आवर का आपको सामने आ जाता है। बिल्कुल। एनी एडिशन? कुछ बचा नहीं आज, इस दफ़ा हम उधर से आए ना तो कम चीज़ें बची हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी बात। फर्स्ट टाइम पेशेंट आ रहा है तो उसकी हमें प्रीवियस हिस्ट्री भी लेनी है, फैमिली हिस्ट्री भी। गुड, कोई पार्ट हिस्ट्री पे भी तो आया, यानी इन्वेस्टिगेशन के बाद अभी हिस्ट्री आई है। हिस्ट्री अभी हम आते हैं इस पे। तो हिस्ट्री में आप क्या पूछना चाहेंगे? सर हिस्ट्री में जैसे फीमेल है तो पीएच की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ओके, और इसके अलावा ये जैसा आर्थराइटिस वगैरह के पेशेंट ठीक है, स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, ठीक है, हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, हिस्ट्री बहुत important ठीक है। और कुछ, एनीथिंग ऐड, एडिशनल यू वांट टू ऐड? ठीक, चलें, अब हम आते हैं असेसमेंट प्लान पे, वही कन्वेंशनल रूल्स जो 3rd ईयर से हैं। स्टार्ट हिस्ट्री से ही करें, यानी आपको इस पेशेंट आपके पास आके अपना ये प्रॉब्लम लेके बैठा है, उसने बताया कि मेरा बीपी 150, अभी आपके पास इसका सिनेरियो सोचेंगे, क्लिनिक पे एक पेशेंट आता है और बताता है मुझे हेडेक हुआ है और मेरे बीपी 150/90 रह रहा है, 1 वीक और 2 की हिस्ट्री है। तो अब आपका पहला गोल बात से शुरू होता है ना काम, प्रीवियस बीपी रिकॉर्ड्स, isn't it important? हम पूछते भी हैं, तो ये सब भूल गए हमारे खानदान में तो नहीं। यानी पहला पार्ट क्या है? हिस्ट्री। और हिस्ट्री में क्या कुछ पूछना है? प्रीवियस बीपी रिकॉर्डिंग्स एट एनी मोमेंट, एंड यू गेट वेरिएबल आंसर्स फॉर दैट। हमेशा नॉर्मल आता है,
भाई कितना आता है ये नहीं पता, बट डॉक्टर कह देता है नॉर्मल है। कुछ होते हैं कैटेगोरिक, वो बताएंगे नहीं मेरा 120-80 ही रहता है, कभी इससे बढ़ा नहीं। दिस इज वेरी कॉन्फिडेंट आंसर, बट आंसर इन विच अ पेशेंट इज सेइंग नॉर्मल रहता है बट डॉक्टर हैड नेवर टोल्ड मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये प्लस माइनस आंसर। कोई कहेगा नहीं ये अक्सर ऐसा हुआ है कि 6 महीने पहले मेरा थोड़ा सा बढ़ गया था, डॉक्टर ने 1 महीने के लिए दवा दी थी, फिर बीपी ठीक हो गया था, तो जवाब हाँ। So you got a good amount of information with this just one question. What about your previous blood pressure recordings? Second, history of complaints related to complications. Complaints related to complications and etiology and identifiable causes, जो अभी हमने आपको दिखाए थे कॉजेस। कॉजल रिस्क फैक्टर्स एंड मेजर रिस्क फैक्टर्स। अच्छा, इसमें क्या होता है कि हम अमूमन समझते हैं और मरीज भी समझता है कि चूंकि मेरा अभी मसला बीपी का है तो मुझे और कोई बात बताने की डॉक्टर को जरूरत नहीं है। एंड समटाइम्स इफ यू जस्ट आस्क, और एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कॉम्प्लिकेशंस को पिक करने के लिए कि आपको आम रूटीन के चलने फिरने में कोई तकलीफ तो नहीं होती है। दैट क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी आस्क्ड टू अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन। आप 100 में से एक ज़रूर मिलेगा, हाँ जब मैं चलता हूँ सीढ़ी तो मेरा सीना भारी हो जाता है, या मैं चलता हूँ तो सांस फूलने लगती है। दैट विल गिव यू अ क्लू टू आस्क फर्दर